तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. So students, today we are going to discuss about the unit number 5, daffodils. बेटा, डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस का पौधा, यानी कि एक ऐसा फूल होता है जो कि पानी के ऊपर तैर रहा होता है। झीलों, नदी, नालों वगैरह के ऊपर जो पानी के ऊपर एक बड़ा सा कमल का फूल होता है जिसको हम आबी नरगिस भी कहते हैं, वो ऊपर तैर रहा होता है। उसके बारे में ये पोइम लिखी गई है। पोइम है ये डैफोडिल्स, जिसके पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये कब लिखी, ये 1770 से लेकर 1850 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ का टाइम टेबल दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ was born at Cockermouth in Cumberland on April 7th, 1770. His passion for nature is well known. That is why he is referred to as the poet of nature. विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर का नाम दिया गया था। वर्ड्सवर्थ इज़ अ ट्रू वर्शिपर एंड अर्डेंट लवर ऑफ नेचर. इट वॉज अ क्रीड फॉर हिम. अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज़ अ टीचर एंड प्रीचर. इन दिस पोइम द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस द हेल्दी, ennobling, purifying and enduring impact of nature on human being. Some of the famous poems by Wordsworth to be read and enjoyed are To the Cuckoo, Lucy Gray, The World is Too Much with Us, The 2 April Mornings, It is a Beauteous Evening, Solitary Reappear, We Are Seven. These are the names of the poems which were written by Wordsworth. We probably have moments in our life that we replay in our memory, images to which photographs or videos cannot do justice because they cannot capture our feeling. In this poem, William Wordsworth captures both the image and feelings concerned to a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also the purifying and enduring impact of it on human being. One day, the poet passing by a lake, suddenly he saw a large number of golden daffodils along the side of the lake. They were moving and dancing with joy. They were shining like the stars on the Milky Way. The waves of the lake were also dancing along with the daffodils, but the daffodils surpassed the waves of the lake. The poet went on looking at them for a long time. He was fascinated to see this beautiful scene of the nature, so he wrote the poem on the daffodils. This scene was imprinted on his memory. The poet remembered this charming scene whenever he lies in his couch in vacant or in a thoughtful mood. It has become a blessing in his loneliness. His worries decreases and his heart is filled with pleasure at the memory of the beautiful flowers. So now we are going to read, translate and describe different stanzas or paragraphs of this poem. First one is I wandered lonely
as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So, this was the first stanza in which the poet describes about the beauty of the daffodils. मैं इस बादल की तरह तन्हा घूम रहा था जो वादियों और पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर तैरता फिरता है, जबकि अचानक मैंने बहुत बड़ी तादाद देखी अनगिनत सुनहरी आबी नरगिस के फूलों की। ये फूल झील के साथ दरख्तों के नीचे हवा में झूम और लहरा रहे थे। Now we are going to discuss briefly about the stanza. Students, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेफरेंस लिखते हैं। जब भी हम किसी पोइम के बारे में डिस्कस करने जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले रेफरेंस देते हैं कि वो पोइम का नेम क्या है और उसके पोइट का क्या नेम है या किसने लिखी है वो। सो रेफरेंस के अंदर हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कि ये जो पोइम है, ये नज़म जो है, ये आबी नरगिस जो है वहाँ से ली गई है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम 2 से 3 लाइंस के अंदर बताते हैं कि असल में बताया क्या गया है, स्टैंजा के अंदर क्या लिखा गया है। ब्रीफली थोड़ा सा बता देते हैं। इन द सिंपल पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ while wandering along the bank of a lake. He saw a large number of golden daffodils dancing with joy. The beautiful scene became a permanent source of pleasure for him. कि इस नज़म में एक झील के किनारे घूमते हुए शायर ने बहुत से नरगिस के फूल देखे जो कि खुशी से झूम रहे थे। ये खूबसूरत मंज़र उसके लिए खुशी फराहम करने का ज़रिया बन गया था। सो देर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड सिनोनियम। फर्स्ट वन इज़ वैंडर्ड। वैंडर्ड का मतलब होता है बेटा आवारा फिरना या अकेले फिरना। तो इसका मतलब है स्ट्रे, लोनली अकेला, अलोन, फ्लोट तैरना, स्लाइड और सेल, वेल्स वादियाँ जिसको हम वैलीज़ भी कहते हैं, क्राउड हजूम या मॉब, फ्लटर झूलना, डांस, बीनीथ नीचे, बिलो। सो स्टूडेंट्स, you have to practice these difficult words, their pronunciation, meanings and synonym, and also learn their spellings, because if you don't learn the spellings you have not be able to pronounce the difficult words. There are some sentences given according to the difficult words. First one is wandered. He stood and wandered off. Next one, lonely. He set out on a lonely journey. Float. I am not afraid to float on. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस इसलिए बनाए गए हैं बेटा ताकि आप अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकें, आप अपनी सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो आप इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनियम को याद करेंगे, इनके स्पेलिंग्स को याद करेंगे और इनके वर्ड सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे मैंने आपको 3 बनाकर दे दिए, यहाँ पर बाकी जितने भी वर्ड्स रह गए हैं ये आपका होमवर्क है कि आपने साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से बनाने हैं ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इन्हेंस हो। नेक्स्ट, सेकंड स्टैंजा, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. वो कहकशां के चमकने और टिमटिमाने वाले सितारों की तरह लातादाद उगे हुए थे, यानी कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। वो झील के किनारे के साथ ना ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डैफोडिल्स की बात हो रही है। एक नज़र मैंने 10,000 फूल देखे जो खुशी के साथ अपने सिरों को हिलाते हुए रक्स कर रहे थे। सो देयर इज़ क्वेश्चन गिवन इन द बॉक्स, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार। यहाँ पर पोइट ने डैफोडिल को स्टार के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि आपने कैसे मतलब कि कंपेयर किया डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ। सो द आंसर इज़
The endless rows of the beautiful daffodils growing beside a lake looks like shining stars in the Milky Way. Now we are going to discuss the reference. These lines have been taken from the poem Daffodils written by William Wordsworth. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हम थोड़ा सा उसका देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि सबसे पहले हमने पोइम कौन सी है और पोइट क्या है, उसका नेम लिखते हैं रेफरेंस के अंदर. नेक्स्ट वन कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हम उसको ब्रीफली बता देते हैं कि होता क्या. इन दिस पोइम In this simple poem, the poet describes a pleasant experience of his life. While wandering along the bank of a lake, he saw a large number of golden daffodils dancing with joy. This beautiful scene became a permanent source of pleasure for him. स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना बेटा, ये आपको बस एक ही दफ़ा याद करना होता है. जितनी भी पूरी की पूरी पोइम के अंदर आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यही लिखेंगे, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन के अंदर जाते हैं तब आपको हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन जो है वो डिफरेंटली करनी पड़ती है. ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर. द पोइट सेज दैट द डैफोडिल्स विच ही सा अलोंग द बैंक ऑफ द लेक वर काउंटलेस इन नंबर. दे वर शाइनिंग लाइक द स्टार्स ऑन द मिल्की वे एंड वर स्प्रेड इन अ नेवर एंडिंग लाइन. द पोइट सा 10,000 daffodils at a glance. They were moving to and fro with joy. It seemed that they were dancing in the cool air. अगर हम इसकी थोड़ी देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं, तो वो कुछ ऐसे होगी कि जो पोइट है या शायर है उसने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में लेक के किनारे के ऊपर तादाद में फूल जो थे वो डैफोडिल जो थे वो पड़े हुए थे जैसे कि शाइनिंग स्टार्स हैं, और ये तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा थे जो कि बिखरे हुए थे, और ऐसे लग रहा था जैसे हवा के साथ जो है वो डांस कर रहे हैं. So there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms. First one is twinkle. Twinkle का मतलब होता है बेटा झिलमिलाना यानी कि शाइन. मिल्की वे, कहकशा, स्पाइरल गैलेक्सी. स्ट्रेच्ड, फैले हुए, एक्सटेंडेड. मार्जिन, किनारा या एज और साइड. ग्लैंस, चमक, झलक, ग्लिम्स. स्प्राइटली, खुशी के साथ, एनर्जेटिक. There are some difficult words in the sentences. Twinkle, his eyes began to twinkle again. Milky Way, it was tremendous to looking at the Milky Way. Stressed, the man stretched out his legs in front of him. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अपने आप सेंटेंसेस में ख़ुद से यूज़ करेंगे ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हों. थर्ड स्टैंजा. द वेव्स बिसाइड देम danced, but they outdid the sparkling wave in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मौजें भी उनके साथ रक्स कर रही थीं, लेकिन वो चमक में मौजों से बाजी ले गए. एक शायर ऐसी खुशगवार महफिल में खुश हुए बगैर नहीं रह सकता. मैं देखता और देखता ही रहा, लेकिन इस बारे में ख़्याल ना किया कि इस मंज़र ने मुझे कितनी ज़्यादा दौलत अता की है. देयर इज़ अ क्वेश्चन in box. How does the poet feel in the company of the daffodils? So the answer is the poet feels happy when he thinks about the daffodils dancing with joy. There is reference and context. These lines have been taken from the poem Daffodils written by William Wordsworth. In the simple poem, the poet describes a pleasant experience of his life. While wandering along the bank of a lake, he saw a large number of golden daffodils dancing with joy. This beautiful scene became a permanent joy of or pleasure for him. Explanation about this stanza. The poet says that water waves were also dancing with joy along with the daffodils, but the daffodils overtook the waves. It was a very beautiful scene. The poet felt very happy in such a pleasing atmosphere. He went on looking at the flowers. He could not think about the wealth of pleasure which that scene had brought him. इस सादा नज़म में शायर जो है वो क्या बयान कर रहा है, वो ये बता रहा है कि कैसे जो लहरें थी पानी की, उनके साथ जो है वो डैफोडिल्स जो थे वो कैसे डांस कर रहे थे. उनको देखकर बहुत एक खूबसूरत सा सीन क्रिएट हो रहा था, जिसको देखकर शायर जो है वो बहुत खुशी का इजहार कर रहा है और वो कह रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है उसके लिए.
There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms. First one is glee. Glee का मतलब होता है बेटा खुशी, delight. Gay खुश होना, cheerful. Jocund खुशकुन यानी कि jolly. Gaze टिकटिकी बांध कर देखना, किसी को मुसलसल घूर कर देखना. इसका मीनिंग है स्टेयर. कंपनी सोहबत या फेलोशिप. वेल्थ दौलत यानी कि मनी. There are some difficult words and sentences. First one is glee. Soon her glee turns to fear. Gay. The gay remembrance of a life well sport. Jocund. The jocund song put everyone in a happy frame of mind. Stanza number 4. For off when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अक्सर जब मैं अपनी आरामदेह कुर्सी पर या सोफ़े के ऊपर खाली दिमाग या गमगीन तबीयत के साथ लेटता हूँ तो ये डैफोडिल्स यानी कि आबी नरगिस अचानक मेरे जहन में आ जाते हैं. इनकी तस्वीर का नज़रों के सामने आना तन्हाई में एक बहुत बड़ी नेमत होती है, इसलिए मेरा दिल खुशी से भर जाता है और मैं आबी नरगिसों के साथ ही नाचना शुरू कर देता हूँ. ये पोइट जो है इस स्टैंजा में बयान कर रहा है. Reference and context. These lines have been taken from the poem Daffodil written by William Wordsworth. Context वही lines हैं जो पहले हम कर चुके हैं. In this simple poem, the poet describes a pleasant experience of his life while wandering along the bank of a lake. He saw a large number of golden daffodils dancing with joy. This beautiful scene became a permanent source of pleasure for him. Now we are going to discuss the explanation. The poet says that whenever he lies in his bed in vacant or in thoughtful mood, this beautiful sight of the daffodil suddenly comes before his eyes. His heart is filled with joy on remembering this beautiful scene. He feels as if he is in the company of these happy daffodils, so his heart also starts dancing with them golden daffodils. इसके अंदर पोइट ये बयान कर रहा है कि जब भी वो अपनी खाली सोफ़े के ऊपर बैठता है, चाहे तन्हाई में होता है, तो जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है, चाहे वो खुशी के साथ हो या गम के साथ हो, तो ये जो आबी नरगिस जो सीन उसने देखा जो कि उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा और उसने पूरी की पूरी पोइम लिखी, तो ये जो सीन है ये फ़ौरन उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो उस सीन को देखते हुए मतलब कि उसके लिए वो बहुत खुशी का एहसास होता है उस सीन को देखना या उसको महसूस करना. तो वो कहता है कि मेरे लिए एक नेमत होती है और उसका दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और वो अपने ख्यालों में ही उनके साथ ही डांस करना शुरू कर देता है. Now there are some difficult words, pronunciation, meaning and synonyms about the stanza number 4. First one is couch. Couch का मतलब होता है बेटा आरामदेह कुर्सी या सोफ़ा भी हम इसको कहते हैं. Vacant खाली, empty. Pensive अफसुर्दा, sad. Bliss खुशी यानी कि जॉय. फ्लैश अचानक दिमाग में आ जाना, लाइट अप. सॉलिट्यूड तन्हाई, लोनलीनेस. देयर आर सम सेंटेंसेस अबाउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ काउच. आई स्लेप्ट ऑन द काउच. वेकेंट द सीट नेक्स्ट टू हिम वॉज वेकेंट. पेंसिव शी वॉज पेंसिव फॉर अ मोमेंट. बेटा ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए गए हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है, मीनिंग, सिनोनिम. आप इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ से याद करें, इनके स्पेलिंग्स को यहाँ से अच्छे तरीके से याद करें, इनकी प्रोनाउंसिएशन को देखें कि कौन सा लफ्ज़ कैसे अदा किया जाएगा, उनके मीनिंग्स को अपने दिमाग में रखें, सिनोनिम्स को याद रखें ताकि आपकी वोकेबलरी बढ़े और सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हों. बेटा जब आपकी सेल्फ़ राइटिंग इम्प्रूव होगी तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा इंग्लिश को सीखते हुए. तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी और सेल्फ़ राइटिंग होती है. अगर आपकी ये दो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता इंग्लिश के अंदर. सो आई होप आप इसके ऊपर अमल करेंगे. नेक्स्ट वन बेटा समरी. समरी जो है वो किसी भी चीज़ का निचोड़ होता है, यानी कि जितना भी हमने ये पोइम पढ़ी है इसके अंदर असल में पोइट कहना क्या चाह रहा है वो सारे का सारा इसके अंदर बताया गया है इस समरी के अंदर. तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं.
समरी जो होती है बेटा हर पोइम की लाजमी याद करनी होती है, क्योंकि पेपर के अंदर मस्ट समरी आती है। आपकी जितने भी चैप्टर वो पोइम दी गई हैं इस पूरी बुक के अंदर, उनमें से किसी ना किसी एक उसकी पोइम ज़रूर आएगी आपको लिखनी। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस समरी को अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ फेमस एज अ पोइट ऑफ नेचर. One day he was wandering along the bank of a lake. Suddenly he saw a large number of golden daffodils. The flowers were dancing with joy. They were shining like the stars on the Milky Way. विलियम वर्ड्सवर्थ फितरत का यानी कि कुदरत का एक मशहूर शायर है। एक दिन वो एक झील के किनारे आवारा फिर रहा था, यानी कि वैसे ही घूम फिर रहा था। अचानक उसने सुनहरी नरगिस का बहुत बड़ा इकट्ठा उनका हजूम देखा। ये फूल खुशी से रक्स कर रहे थे। वो इस तरह चमक रहे थे जैसे कहकशां पर सितारे चमक रहे होते हैं। The waves of the lake were also dancing with the daffodils. It was a very beautiful and charming scene. The poet was delighted to see this happy scene. It became a permanent source of pleasure for him. He says that whenever he lies in his bed in a thoughtful mood, his sight of these dancing daffodils comes into his imagination and his heart is filled with pleasure. वो कह रहा है कि जब उसने बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंज़र देखा, शायर इस मंज़र को देखकर बहुत खुश हुआ। ये उसके खुशी फराहम करने का मुस्तकिल ज़रिया बन गया। वो कहता है कि जब कभी भी वो अपने बिस्तर पर सोच विचार करने के लिए लेट जाता है तो उन झूमते हुए आबी नरगिसों का मंज़र उसके तख़य्युल यानी कि उसकी सोच में आ जाता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। आई होप बेटा आपको इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये आपके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन है, आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपका होमवर्क है कि आप इनके मीनिंग्स को याद करें, प्रोनाउंसिएशन को याद करें, सिनोनिम को याद करें, सेंटेंसेस को बनाएं और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितने भी हैं इनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करें। आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।